Today we are going to learn about the concept of average speed in detail. So we'll start the class. This concept of average speed is from the motion in a straight line. So let me change the color of the pen. I'll take it black. Now it is black. Okay. We'll move forward. Now we know that there are different types of speeds. One by one we'll see what are the different types of speeds first. The types of speed. Uniform speed. About uniform speed, we have already studied in our last lecture. So that video is uploaded on the YouTube. So from there you can watch it. This we have already studied. Then variable speed. Variable speed also we have studied in our last lecture. So separate video is uploaded on the YouTube. From there you can see the video and learn about the variable speed. Today we are going to learn about the average speed. So this is today's work. Average speed. This we will learn today. And the last speed is instantaneous speed. Here important thing to note is that all these four types of speeds are different from each other in their character and their definition is different. Like uniform speed is different from variable speed is different from average speed, and average speed is different from instantaneous speed. In fact, all speeds are different in character. So that we have studied uniform speed, variable speed, and today we'll study about the average speed. Now we'll see the concept of average speed. So as we know, speed is equal to distance upon time. Okay. So average speed की जब बात हो रही है, तो it is the total distance traveled by an object divided by total time taken. Average speed is total distance traveled by the object divided by total time taken. This time is taken to travel the distance which is written over here. So total distance को जब total time से divide करेंगे तो we'll get the average speed. For example, suppose करो कि you have to go from place A to place B, okay, through O. So if from A to O, if you are covering S1 distance with V1 speed, and from O to B, if you are covering S2 distance with V2 speed, then the average speed will be different. Average value of the average speed will be different. That will calculate in this class only. अभी थोड़ी देर के बाद calculate करेंगे उसको. Suppose a bus is traveling from A to B in these two steps. A to O with it is running with V1 speed, covering S1 distance, and O to B the speed is V2 and covering S2 distance. So here we can see one important thing, that the speed is variable. So speed is variable here. So always remember, average speed comes into picture when the speed is variable. That time there is a requirement of the average speed. Okay? So we'll move forward. Now we know the formula. So here same thing is written which just now I have explained. For an object moving with variable speed, the average speed comes into the picture. The average speed is total distance traveled upon total time taken. Now I am giving an example of average speed. Okay? So in this table 1, you can see that the object is moving with variable speed here, because in interval of 1 second, every time it is changing the distance. Unequal distance it is covering. 1 second में 4 मीटर गया, then next 1 second interval में 6 मीटर गया, उसके next 1 second में ये 10 मीटर गया, ठीक है, और उसके 1 second में ये 15 मीटर गया. तो इस टेबल से हमने यहाँ पे एक वेरिएबल स्पीड ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है. ठीक है, वेरिएबल स्पीड ग्राफ ड्रॉ किया है. ये ग्राफ है डिस्टेंस वर्सेस टाइम का. So here we can see that the curve of the graph, that is blue line, is a curve. It is a curve graph. So curve graph, as I have explained you already in my previous lecture, shows that this is a variable speed graph. ये variable speed graph है. यहाँ पे speed कितना है? 4 meter per second है. Then second interval में 6 meter per second. This time distance is divided by the time interval. Then it is 10 meter per second. These things all we have learned in the previous class. 15 meter per second.
तो यहाँ पे हमको ये दिख रहा है कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज 35 मीटर। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस कवर्ड विच इज हियर 35 मीटर। ठीक है, 35 मीटर है। These are all distances in meter and time is in second. So 35 meter divided by total time taken, how much time the object is taking? 4 seconds. तो इसका एवरेज स्पीड कितना हो गया? 8.75 meter per second. Now see the advantage of this speed. If suppose I say that in 8 seconds, now this object will, how much distance it will cover? हमने सेकंड टाइम को क्या कर दिया? डबल कर दिया। ठीक है, तो डिस्टेंस, तो इसका डिस्टेंस कितना कवर कर लेगा? डबल डिस्टेंस कवर करेगा। Immediately we'll say, if we are saying that the object is moving with an average speed of 8.75 meter, so in 8 seconds how much it will move? So we'll say immediately it will move 70 meter. वैसे भी देख सकते हैं 8.75 meter per second is the speed into multiplied by we are taking 8, we are asking in 8 seconds, multiplied by 8 seconds, so it will come 70 meter distance. So this is the advantage. We can calculate the distance here. Similarly, we can calculate the time also. Like if I say that 35 meter with average speed 8.75 meter, the object is moving, so then in 8 seconds, that in 10 seconds, how much distance it will cover? So in that case, 8.75 meter per second, and in 10 seconds we have to calculate the distance. We will multiply by 10 seconds. So we immediately will say it is 87.5 meter distance it will cover. So this is the advantage of this average speed. We get a constant speed here, and that we utilize for this type of calculations. तो ये एडवांटेज है एवरेज स्पीड का। तो हमने यहाँ पे एवरेज स्पीड को देखा, और मैंने जैसा बताया एवरेज स्पीड कम्स इनटू द पिक्चर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद ए वेरिएबल स्पीड। दैट इज व्हाई दिस ग्राफ इज ऑफ वेरिएबल स्पीड ग्राफ। तो यहाँ पर इन बातों को हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट थिंग which is very important. Here we'll see average speed in different situations. तो पहला सिचुएशन मैं लेता हूँ, a body covering different distances with different speeds. ये जो कवर कर रही है different distance कवर कर रही है different speed के साथ। तो यहाँ पे ये देखो, ये बॉडी है वो A से C तक उसको जाना है, A to C जाना है। ठीक है, लेकिन different distances, A to B पहले गई S1 distance T1 टाइम में, then B to C S2 distance T2 टाइम में। This thing you have to रिटेन इन योर माइंड कि क्या यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बॉडी ए से बी S1 डिस्टेंस उसने तय किया T1 टाइम में, और B to C S2 डिस्टेंस उसने तय किया T2 टाइम में। ठीक है, तो दीज आर द टू वेरिएबल्स हियर वी नो, टू क्वांटिटीज, डिस्टेंस S1 टाइम T1, डिस्टेंस S2 टाइम T2। So let us read the thing. Suppose a body covers distance S1 and S2 with time, here we are taking V1 स्पीड से कवर कर रही है, V2 स्पीड से कवर कर रही है सेकंड डिस्टेंस विद स्पीड्स V1 एंड V2 रिस्पेक्टिवली, देन इस एवरेज स्पीड विल बी, क्या रहेगा एवरेज स्पीड? V एवरेज विल बी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, टोटल डिस्टेंस होता है जो ट्रेवल किया बॉडी ने, कितने टाइम में ट्रेवल किया। तो कैसे निकालते हैं टोटल डिस्टेंस? वी नो दैट हियर टोटल डिस्टेंस कितना है, यहाँ पे S1 प्लस S2 है। ठीक है, टोटल डिस्टेंस S1 प्लस S2 हो गया, और टोटल टाइम कितना ले रही है ये? T1 प्लस T2। ठीक है, टोटल टाइम ये ले रही है T1 प्लस T2। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखो S1 प्लस S2 हो गया, यहाँ S1 प्लस S2 हो गया, और T1 प्लस T2 की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग? T क्या होता है? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, तो S1 अपॉन V1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख लिया S1 अपॉन V1 फर्स्ट A टू B के लिए, प्लस T2 की जगह क्या लिखेंगे हम लोग? S2 अपॉन V2, S2 अपॉन V2 हमने लिख दिया। अब दिस जो ये फॉर्मूला है V एवरेज का, दिस फॉर्मूला, दिस वी कैन अप्लाई इन दिस टाइप ऑफ सिचुएशंस। यहाँ पे क्या हो सकता है कि बॉडी S1 S2 S3 डिस्टेंस भी तय कर सकती है। ठीक है, S3 डिस्टेंस उसने तय किया S3 V3 स्पीड से, तो यहाँ पे क्या ऐड हो जाएगा? प्लस S3 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा S3 अपॉन V3। ठीक है, दिस विल बी एडिशनल। इसी तरह से S4 अपॉन V4 आ जाएगा। सो दिस फॉर्मूला विल यूज फॉर n नंबर ऑफ डिस्टेंसेस
विथ रिस्पेक्ट टू एन नंबर ऑफ स्पीड्स, ठीक है, वहां यूज कर सकते हैं। अब हम लोग एक स्पेशल केस ले लेते हैं, जैसा कि यहाँ पे क्या मैंने ले लिया है, S1 इज इक्वल टू S2 ले लिया, ठीक है। तो इस केस में अगर मैं यहाँ से इसको हटा दूं और यहाँ पे मैं लेता हूँ S1 इज इक्वल टू S2 इज इक्वल टू S, ठीक है। तो यहाँ पे S1 प्लस S2 की जगह क्या लिख देंगे, S प्लस S लिख देंगे, और नीचे S1 अपन V1 की जगह S अपन V1 प्लस S अपन V2 लिख लेंगे, ठीक है। और ऊपर S प्लस S करेंगे तो 2S हो जाएगा, नीचे S कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, 1 अपन V1 प्लस 1 अपन V2, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये 2S जो ऊपर है न्यूमरेटर में और नीचे डिनोमिनेटर में S है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, बच जाएगा 1 अपन V1 प्लस 1 अपन V2। तो इसको जब हम लोग V1 V2 एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, देन विल गेट द एवरेज स्पीड 2 V1 अपन V1 प्लस V2। दिस इज इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ठीक है। इस रिजल्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, हार्मोनिक मीन स्पीड ऑफ, हार्मोनिक मीन ऑफ इंडिविजुअल स्पीड्स। क्लियरली द एवरेज स्पीड, जो एवरेज स्पीड निकल के आया, इज द हार्मोनिक मीन ऑफ द इंडिविजुअल स्पीड। इंडिविजुअल स्पीड V1 V2 है, तो इसका हार्मोनिक मीन आया 2 V1 अपॉन V1 प्लस V2, एंड दिस इज द V एवरेज, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमको इस सिचुएशन में हमको दे रखा है कि एक डिस्टेंस S1 जो है वो 1 किलोमीटर है और V1 है 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, एंड सेकेंड डिस्टेंस S2 है 1 किलोमीटर और V2 है 60 किलोमीटर पर आवर। तो हमारा आंसर क्या आएगा, एवरेज स्पीड अगर पूछा तो हम लोग क्या करेंगे, V एवरेज विल बी इक्वल टू 2 इंटू V1, V1 कितना है 40 किलोमीटर पर आवर इंटू 60 किलोमीटर पर आवर, V2 अपॉन V1 प्लस V2, 40 प्लस 60 को ऐड कर देंगे, तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 240 इंटू 60, नीचे 40 प्लस 60 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 6 4 जा 24 इंटू 2 48 किलोमीटर पर आवर विल बी द एवरेज स्पीड, ये आंसर आ जाएगा। तो दिस टाइप से हम लोग को न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है यहाँ पे, ठीक है। तो विद दिस वी हैव अंडरस्टूड व्हेन ए बॉडी कवरिंग डिफरेंट डिस्टेंसेस वर्क विद डिफरेंट स्पीड्स। तो हमने यहाँ एक स्पेशल केस लिया जिसमें हमने दो डिस्टेंस को दिखलाया और उनको इक्वल कर दिया। तो इस केस में जब दोनों डिस्टेंस इक्वल है तो V एवरेज विल बी 2 V1 अपॉन V1 प्लस V2, दैट इज द हार्मोनिक मीन ऑफ इंडिविजुअल स्पीड। It will come like this. This is very important. So this you have to do in a very correct and accurate way. अब हम लोग देख रहे हैं सेकंड केस, एवरेज स्पीड इन डिफरेंट सिचुएशन में सेकंड केस देख रहे हैं, ए बॉडी मूविंग विद डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट टाइम इंटरवल। यहाँ पे जो बॉडी है वो डिफरेंट स्पीड से मूव हो रही है। देखो ए से सी तक बॉडी को जाना था, तो ए से बी गई वो V1 स्पीड से T1 टाइम इंटरवल में, और बी से सी गई V2 स्पीड से T2 टाइम इंटरवल में। तो यहाँ पे क्या होता है, हमको मालूम है डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी, स्पीड इनटू टाइम होता है, ठीक है, स्पीड इनटू टाइम होता है। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो गया, टोटल डिस्टेंस पहले ए से बी के बीच में V1 स्पीड से जा रही है T1 टाइम में, तो V1 प्लस T1 प्लस बी से सी के बीच में V2 स्पीड से जा रही है, तो V2 इंटू T2, दिस इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। डिस्टेंस क्या होता है, V इंटू स्पीड इंटू टाइम। तो हमने ए से बी के बीच में V1 इंटू T1 प्लस ले लिया डिस्टेंस, और बी से सी के इंटरवल में V2 इंटू T2 को मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड कर दिया, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड आ गया यहाँ पे। और इसने टाइम कितना लिया, T1 प्लस T2, टोटल टाइम टेकन T1 प्लस T2 हो गया, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे V एवरेज क्या होता है। अभी तो मैंने बताया ये बात कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पे कितना है, क्वेश्चन 1 में V1 T1 प्लस V2 T2, उसको किससे डिवाइड कर देंगे, क्वेश्चन 2 से T1 प्लस T2 टोटल टाइम से, इसको डिवाइड कर दिया तो ये V एवरेज आ गया। अब स्पेशल केस हम लोग देखते हैं, जैसे पहले हमने देखा था, यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं कि दोनों टाइम इंटरवल जो है T1 T2, ये जो टाइम इंटरवल है A to B और B to C के बीच में, ये इक्वल है T के। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इक्वेशन 3 में जहाँ भी T1 T2 है वहां पे हम लोग T सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो V1 T हो जाएगा प्लस V2 T अपॉन T प्लस T। तो ऊपर क्या हो जाएगा, कॉमन T बाहर आ जाएगा कॉमन, ब्रैकेट के अंदर रहेगा V1 प्लस V2 अपॉन 2T। ये T से T कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल कर दिया हमने, तो आंसर आ गया V1 अपॉन V2, V1 प्लस V2 अपॉन 2। क्या आंसर आया V एवरेज का, V1 प्लस V2 अपॉन 2, दिस इज द आंसर। तो एवरेज स्पीड इस केस में क्या होगी, अरिथमेटिक मीन ऑफ इंडिविजुअल स्पीड। इंडिविजुअल स्पीड क्या है, V1 V2, और इसका अरिथमेटिक मीन 2 से इसको डिवाइड कर देंगे। इसी तरह से अगर इसी केस में आगे D तक जाना है, V3 स्पीड T3 से जाना है इसको T3 टाइम में,
और अगेन T1, T2 एंड T3 आर इक्वल, तो ये क्या इक्वेशन बन जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 अपॉन 3। तो दिस वी कैन एक्सपेंड इट फर्दर। तो इस तरह से हम लोग कर लेंगे। यहाँ पे हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, एक न्यूमेरिकल करते हैं। ए से बी में ये V1 स्पीड से गया, मान लो ये गया 40 किलोमीटर पर आवर से 1 आवर में, ठीक है। और बी से सी तक, ठीक है, बी से सी तक, ये हटा देता हूँ मैं, बी से सी तक ये 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया 1 आवर में, ठीक है। दोनों में टाइम इक्वल है। तो हमारा एवरेज स्पीड पूछेगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, वी एवरेज विल बी इक्वल टू V1 दैट इज 40 किलोमीटर पर आवर प्लस V2 60 किलोमीटर पर आवर डिवाइड बाई 2, ठीक है। 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। तो 100 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा, 50 किलोमीटर पर आवर। दिस विल बी आवर आंसर, ठीक है। तो इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को भी काफी अच्छे से आपको एक दो बार इस वीडियो को, लेक्चर को देख के अच्छे से समझ लीजिए। इन स्पेशल केसेस में हाउ वी हैव टू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ ए एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एवरेज स्पीड कैसे कैलकुलेट करेंगे किसी ऑब्जेक्ट का। तो विद दिस आई विल से थैंक यू, टेक केयर।